Very good morning, 6th class. Today we will again continue with the DG for your 8th chapter in your geography book, that is India climate, vegetation and wildlife. Climate को हम स्टडी कर चुके हैं, vegetation हम स्टडी कर रहे थे और आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। भारत में जो फॉरेस्ट हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। नेचुरल वेजिटेशन हम स्टडी कर चुके हैं, इम्पोर्टेंस देख लेते हैं फॉरेस्ट की इंडिया में। John is watching a program about forests. It is a beautiful day. जॉन जो है प्रोग्राम देख रहा है नेचुरल फॉरेस्ट के बारे में। Wait, what is happening? Why the sudden panic? सब लोग सारे जानवर पक्षी भाग रहे हैं इधर से It's a forest fire and it is spreading very fast. फॉरेस्ट फायर क्या होता है? जंगल में जो The आग forest लगता has है। been destroyed and has turned into a barren black landscape. फॉरेस्ट में जो है अचानक से आग लग जाती है और जो पूरा हरा भरा फॉरेस्ट था वो इस तरीके से एक फ्लैट लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। Why hasn't anyone come back, even though the fire has died out? This means that life depends greatly on forest. If a forest fire could impact life so much, John wonders about the role of forests in our lives. John decides to go on a trek into a forest with his family, along with जॉन डिसाइड करता है कि वो अपनी फैमिली के साथ एक फॉरेस्ट ट्रैक पे जाएगा, फॉरेस्ट को विजिट करेगा guide. एक गाइड के साथ। Look at the colorful flowers around. Listen to the birds chirping. बर्ड्स चर्प There are thousands and thousands of insects, plants and animals in a forest. जंगल में क्या होते हैं? इंसेक्ट्स, एनिमल्स, मैमल्स। You know, John, a forest is an ever-growing and changing community made up of many different plants and animals interacting in various ways. ठीक है, तो जो गाइड है वो बता रहा है कि जो ये फॉरेस्ट का जो पूरा सोसाइटी है ये लगातार चेंज होती रहती है और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती रहती है। Forests have a perfect ecosystem. So tell me, John, what is that one thing all living creatures need to live? अब ये जो फॉरेस्ट गाइड है ये उनसे पूछता है कि जॉन तो मुझे कोई एक चीज बताओ जो सभी लिविंग क्रिएचर्स के जीने के लिए जरूरी है। It's oxygen, ठीक है, little friend. ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों को जीने के लिए। Plants and trees use the sun's energy to make their food and release oxygen. ये सबको पता है आपको? Do you know that every part of a plant is useful? Let us find out how. एक प्लांट का हर एक पार्ट हमारे लिए काफी यूजफुल होता है। Let's start with the roots. Roots protect the soil by binding the soil firmly. जो Like की रूट होती हैं, जड़ें होती हैं, वो किस लिए हेल्प करती है हमें? किस तरीके से? जो सॉइल होती है उसको बांध के रखती है अपने साथ। ठीक है, मिट्टी को जो है बहने नहीं देती, हवा चलती है, पानी बहता है तो उससे सॉइल इरोजन नहीं होता, इरोड नहीं होने देती, बह के नहीं चला जाता है, उड़ के नहीं चली जाती है मिट्टी, तो मिट्टी को बांधने का काम करती है जो पेड़ की जड़ें होती हैं। Sponge. Roots absorb rainwater. ठीक है, ऑब्जॉर्व कर लेती हैं बारिश के पानी को। The water it absorbs from the soil spreads in the plant system. This keeps the leaf surface cool and protects the tree from excessive heat. इससे ये पेड़ को गर्मी से How does बचाता this है। help us? Trees draw moisture from the soil and release it into the atmosphere. मॉइस्चर को Thus, अब्जॉर्ब करते हैं, trees help to moderate the climate. ठीक है, और उसको रिलीज करते हैं क्लाइमेट में, तो उस तरीके से हमारे क्लाइमेट को मॉडरेट बनाने में हेल्पफुल होते हैं। ना ज़्यादा गर्मी होने देते हैं और ना ही ज़्यादा जो ये चिपचिपा वाला उमस वाला जो मौसम होता है उसको अब्जॉर्व कर देते हैं और एक मॉडरेट क्लाइमेट बनाने में हेल्प करते हैं।
In the equatorial regions, the moisture from the leaves of the trees evaporates and helps to bring rainfall. बारिश करने What का काम happens to करो. the leaves, branches, and stems of trees when they die? The vegetative parts of trees fall on the soil. जो पत्ते होते हैं वो मिट्टी में गिर जाते हैं. Microorganisms help them to decay. This adds nutritive value to the soil, making it more fertile. अब जो अगर कोई पेड़ जो है गिर गया है, मर गया है, तो उसकी जो पेड़ पत्तियां होंगी, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट जो होगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, उससे मिट्टी जो है और ज्यादा न्यूट्रिएंट हो जाएगी और उसकी जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. जो उस पे अगर आप कुछ भी उगाओगे तो वो उसकी उपजाऊ शक्ति मिट्टी की जो है बढ़ चुकी होगी. The trees again absorb these nutrients from the soil, and the process continues. इसके बाद जो ये न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में मिल गए थे, पेड़ अपनी जड़ों के थ्रू उनको फिर से अब्सॉर्ब करेगा और यही प्रोसेस जो है फिर से रिपीट होगी. Forest and living beings. Plants and animals all depend on each other. Look from the forest floor to the crown of the forests. Forests are made of many layers. जंगल जो है These layers of the forests provide food and shelter for wildlife. इससे जंगली जानवरों को शेल्टर भी मिलता है, फूड भी मिलता है. Plants are the starting points of most food chains. प्लांट से जो है फूड चेन ज्यादातर हमारी जो है स्टार्ट होती है. प्लांट को कोई डियर है या ग्रास होपर खाएगा, उसके बाद डियर को जो है टाइगर खाएगा, ग्रास होपर को फ्रॉग खा लेगा, फ्रॉग को स्नेक खा लेगा. तो मतलब जो ये फूड चेन है वो जनरली पेड़ पौधों से ही स्टार्ट होती है. ठीक है, ये सारी क्या है, फूड चेन है. All the organisms are interlinked, and any disturbance in the forest cover affects the dependent living अब things. आपने इस पिक्चर में देखा कि सभी जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है एक दूसरे पर डिपेंड है. तो कहीं भी अगर हम थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस करते हैं, चेंज करते हैं, तो इससे जो है पूरे फॉरेस्ट का जो ये जो फूड चेन है ये जो है डिस्टर्ब हो जाएगी. Do you know that our forests play a key role in our daily lives? Can you name some things in your daily life that directly or indirectly come from forests? आप अपनी डेली लाइफ में चेक करो कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉरेस्ट से आपको मिलती हैं. आप आपकी डे टू डे लाइफ में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो या तो डायरेक्टली आपको फॉरेस्ट से मिल रही हैं या इनडायरेक्टली फॉरेस्ट से मिल रही हैं. The wooden furniture you use at home and school, लकड़ी का फर्नीचर, mushrooms, honey, spices, and medicines all come from forests. ठीक है, ये सारी चीजें आप यूज करते हो. हनी है, मशरूम्स है, स्पाइसेस हैं, मसाले, वुडन फर्नीचर जो आप घरों में या स्कूलों में यूज करते हो, मेडिसिन जो आप खाते हो, ये सब चीजें जो है फॉरेस्ट से ही हमें मिलती हैं. Forests also provide wood for fuel and construction of buildings. फ्यूल प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट हमें ईंधन के रूप में यूज करने के लिए, और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए हमें वुड प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमें फॉरेस्ट से ही मिलती हैं. Forests also add beauty to the surroundings and provide recreation. फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग. किस तरीके से गुम हो रहे हैं हमारे फॉरेस्ट. Do you know, John, that long ago the earth was green with almost 80% of its surface covered by forests? ठीक है, पहले क्या था, जो हमारी अर्थ का टोटल सरफेस था उसका 80% जो है फॉरेस्ट से कवर था. यानी कि इतनी ज्यादा ग्रीनरी थी हमारे जो वर्ल्ड है उसमें. ठीक है, हमारी अर्थ पे 80% एरिया जो है फॉरेस्ट से कवर्ड था. Human activities have reduced forests to only around 30% of. अब जो ह्यूमन के जो एक्टिविटीज हैं उसकी वजह से अब आज के टाइम में क्या है, सिर्फ 30% फॉरेस्ट रह गए. 80% से सिर्फ 30% रह गए हैं. 70% अदर एरिया हो गया है. कैसे
कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं? जैसे हम जंगलों को साफ करके खेती करते हैं, जंगलों को साफ करके हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, घर बनाते हैं, लगातार पेड़ों को काटते रहते हैं फर्नीचर के लिए, ठीक है, जंगली जानवरों को मारते रहते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो है जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ को एक्सटेंड करने के लिए हम फैक्ट्रीज लगाते रहते हैं, धुआं फैलाते रहते हैं, तो उससे भी जो है जो ये फॉरेस्ट होते हैं ये अफेक्टेड होते हैं। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं इतनी सारी, उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे फॉरेस्ट एरिया है वो 80% से घटकर सिर्फ और सिर्फ 30% रह गया है। The Earth's surface. Even this percentage is shrinking quickly every year. लगातार ये जो Forests are being destroyed for human activities like agriculture, expansion of cities, ठीक है, लगातार हम शहरों को जो है एक्सपैंड करते जा रहे हैं, शहरों का एरिया बढ़ाते जा रहे हैं। एरिया कैसे बढ़ाते हैं? हम जंगलों को साफ करके, ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड हम बढ़ाते हैं, खेती करने के लिए जमीन चाहिए हमें, तो फिर हम जंगलों को साफ करते हैं। construction of roads and dams, then mining. डैम्स बनानी है, माइनिंग करना है, इन सब में जो है This destruction of forests is known as deforestation. इस तरीके से जो हम फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं हम फॉरेस्ट का अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, जैसे कि डैम्स बनाने हैं, रोड बनानी है, बिल्डिंग्स बनाने हैं, फैक्ट्रीज बनानी है, घर बनाने हैं, या एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए हमें, तो जो हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं हम फॉरेस्ट का, इसी प्रोसेस को हम क्या, इसी चीज को हम जो है क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लगातार फॉरेस्ट को कम करते जा रहे हैं, ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए, इंसानों की जरूरतों के लिए जो हम फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। Forest fires also lead to reduction of trees. What will happen if forests disappear? अगर जंगल खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, बताओ, क्या लाइफ बचेगी? जब हमने कहा कि शुरुआत ही जंगलों से होती है, जो फूड चेन है वो स्टार्ट ही जो है पेड़ पौधों से होती है। अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो क्या होगा, हमें खाने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं, और खाने के लिए नहीं मिलेगा कुछ, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? क्या फायदा है फैक्ट्रीज का, क्या फायदा है डैम्स का, रोड्स का, अगर हमें और ना तो ऑक्सीजन मिलेगी ना खाना मिलेगा, तो हम सर्वाइव ही कैसे करेंगे इस अर्थ पे, ठीक है। तो अगर फॉरेस्ट ही डिसअपियर हो जाएंगे तो अल्टीमेटली हम लोग भी डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। Deforestation leads to soil erosion, which in turn pollutes water. Deforestation also leads to land degradation, increase in floods, loss of shelter for wild animals, and global warming. देखो क्या क्या नुकसान होंगे, सॉइल इरोड होगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ों की जड़ें जो है मिट्टी को होल्ड करके नहीं रखेंगी, तो उससे मिट्टी जो है इरोड हो जाएगी, बह जाएगी, उड़ जाएगी, तो ये जो बहती हुई मिट्टी है ये क्या करेगी, वाटर को पॉल्यूट करेगी, ठीक है। जो लैंड होगा वो क्या होगा, रॉकी या बैरन हो जाएगा, इस तरीके से बंजर बन जाएगा पेड़ पौधों के बिना, और बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी। बाढ़ आने की संभावना क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि जब भी बारिश होगी तो पेड़ों की जड़ें ही नहीं होंगी इस पानी को होल्ड करने के लिए, तो बहुत ज्यादा जो है पानी जो है बह के जो है फ्लड का कारण बनेगा। लॉस ऑफ शेल्टर, रहने के लिए हमें जगह नहीं मिलेगा, हमें क्या पक्षियों को, जानवरों को, जो भी जंगल में रहते हैं जीव जंतु, उन सबका जो है शेल्टर खत्म हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग अल्टीमेटली इससे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। टेम्परेचर जो है हमारी अर्थ का लगातार बढ़ता जा रहा है, क्यों, क्योंकि CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो लगातार हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ रही है, क्योंकि हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए? Forests are being cut down too fast. It is not possible for nature to replace them at the same pace. देखो जितनी जल्दी हम पेड़ काटते हैं उतनी जल्दी पेड़ लगाते हैं। What can we do to protect the forests? नहीं हो सकता ना। देखो अगर आपने आज एक पेड़ काटा है, कट तो हो जाएगा 1 घंटे में, 2 घंटे में, लेकिन क्या उतना बड़ा पेड़ तैयार करना 2 घंटे में, 1 घंटे में पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। पेड़ को ग्रो होने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम तो उसको चाहिए ही है, लेकिन कट करने में हम जितनी तेजी से हम जंगलों को खत्म कर रहे हैं उतनी तेजी से पेड़ को जो है जंगलों को हम दोबारा से ग्रो नहीं कर सकते हैं। Seed new plants, replant trees and nurse them. Grow original and local plants as the environmental conditions need to suit. हमें ऐसे पेड़ पौधे लगाने
जो उस इन्वायरमेंट पे, अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि लोकल वेजिटेशन क्या क्या है, इंडिया में कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी वेजिटेशन होती है, तो जिस जगह की जो वेजिटेशन है अगर हम वहाँ पे उसी चीज को उगाते हैं तो उससे क्या होगा, वो पेड़ पौधा वहाँ पे इजीली ग्रो हो पाएगा, क्योंकि सारी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो उसको फेवर करेंगे A ग्रो होने। healthy growth. Excessive logging needs to be stopped. Encourage community forestry, where local people participate in harvesting and managing forest crops. ठीक है, फॉरेस्ट क्रॉप्स जो है उनको उगाने में, मैनेज करने में लोग जो है मिलके काम करें। Create general public awareness programs such as the Van Mahotsav. वन महोत्सव करवा सकते हैं हम पब्लिक को अवेयर करने के We लिए। need to protect our forests for ourselves and also for the future generations. ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी और अपने लिए भी हमें फॉरेस्ट को रिजर्व करने की जरूरत है। क्लियर? तो फॉरेस्ट क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट की इंडिया में? फंक्शंस देखते हैं पहले। ऑक्सीजन देते हैं, फॉरेस्ट क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, सॉइल को होल्ड करते हैं, क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं और मिट्टी में के जो न्यूट्रिएंट्स उनको बढ़ाते हैं, फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं हमें। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, जो भोजन का जो जाल है, यानी कि जो फूड चेन जिसको हम बोलते हैं, जो जाल की तरह बना होता है, कि स्टार्ट ही वहीं से होता है। सबसे पहले पेड़ को कोई छोटा कीट या जानवर खाता है, उसके बाद उसको कोई और जानवर खाता है, तो जो फूड चेन है या फूड वेब है वो जो है पेड़ पौधों से ही स्टार्ट होती है। प्रोवाइडिंग थिंग्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बहुत सारी चीजें हमें मिलती है जंगलों से। हम क्या कर सकते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट को, नए प्लांट्स लगा सकते हैं, रीप्लांट कर सकते हैं पेड़ों को, ठीक है, और नर्स कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं। ओरिजिनल और लोकल प्लांट हमें उगाने चाहिए। एक्सेसिव लॉगिंग, लगातार पेड़ों को काटना जो बहुत तेजी से हम करते जा रहे हैं उसको रोकना चाहिए। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री को इंक्रीज करना चाहिए और लोगों के बीच में पब्लिक अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाने चाहिए, जैसे कि वन महोत्सव। ठीक है, डिसअपियर क्यों हो रहे हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन की वजह से, सिटीज की एक्सपेंशन की वजह से, माइनिंग है, कंस्ट्रक्शन की रोड्स है या डैम्स को कंस्ट्रक्ट करते जा रहे हैं हम। अगर फॉरेस्ट चले जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे तो क्या होगा, उससे सॉइल इरोजन होगा, वाटर पोल्यूशन बढ़ेगा और जो लैंड है वो किस में बदल जाएगी, रॉकी और बैरन, जो बंजर भूमि में बदल जाएगी। फ्लड्स का कारण बनेगा, बाढ़ आएंगी बहुत ज्यादा, शेल्टर नहीं मिलेगा और ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। क्लियर? तो फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हमें इतने सारे नुकसान हो सकते हैं। क्लियर? तो आप यहाँ तक पढ़ के आएंगे, फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस आज हमने स्टडी करी है, इसको अच्छे से रीड आउट करके आएंगे आप। इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।